Sorry, Professor, there has been some technical glitch, so we'll start up with the introduction again. I'm so sorry for the Okay. technical glitches, but we cannot help it right now. It's just supposed to happen even if we prepare so much. I'm so sorry on this, my part. Year 2021, conducted by Cyclogs Magazine. My name is Monica Goswami, and I'll be your host for the evening. And our co host will be Lalita. So, the topic for the evening is mental health issues in India during the pandemic. Fear, worry, and stress are normal responses to perceived or real threats, and at times when we are faced with uncertainty or the unknown. So it is normal and understandable that people are experiencing fear in context of the COVID-19 pandemic. Added to the fear of contracting the virus in a pandemic such as COVID 19 are the significant changes to our daily lives as our movements are restricted in support of efforts to contain and slow down the spread of the virus. Faced with new realities of working from home, temporary unemployment, homeschooling of children, and lack of physical contact with other family members, friends, and colleagues, it is important that we look after our mental as well as our physical health. So, without further ado, I will introduce our honorable guest speaker for the evening. So, our speaker for the evening is Professor Braj Bhushan. A very warm welcome to Professor Braj Bhushan on behalf of Cyclogs Magazine and our audience members. Professor will share his insights around the topic of today's session, that is mental health issues in the Indian society during the pandemic. But before we start the session, let me introduce our honorable speaker to you. Professor Braj Bhushan started his journey with fieldwork in National Task Force Project of ICMR, Indian Council of Medical Research, in the year 1995, and currently he is professor at Indian Institute of Technology, Kanpur. Let me give you a little bit more information. Professor Braj Bhushan completed his master's from Banaras Hindu University and pursued his PhD from Baba Sahib Bhimrao Ambedkar University in neuropsychology. He served the post of senior lecturer at Indian Institute of Technology, Guwahati, from the year 2003 to 2006. He was also a visiting professor at Kyushu University, Japan, in the year 2007. Sir has marked his presence in the Indian Institute of Technology, Kanpur, for more than a decade now, and it gives me immense pleasure to witness his presence amongst us. Professor Bhushan's current areas of work are cognitive neuropsychology, cognitive ergonomics, and trauma psychology in the field. Sar has written various books which are used as text references in various prestigious universities, such as University of Delhi, Aligarh Muslim University. Some of the recent publications involve human adjustment processes in the year 2018, and one of the very famous book currently that is known by us also is Eminent Indian Psychologist, 100 Years of Psychology in India, published in the year 2017. Professor has been awarded with many prestigious awards such as Excellence in Teaching Award, IIT Kanpur. He was awarded the Best Paper Award at the International Conference on Creativity and Cognition in Art and Design, Bangalore, in the year 2017. Professor has also received fellowship under Shastri Indo-Canadian Institute, SMP 2018 to 2019, Sri Devara Chair, IIT Kanpur, and was offered our Common Future Fellowship in 2010 from Volkswagen Stiftung, Germany. Professor Bhushan has given a lot to the field of psychology through his research and development capabilities. Sir was a part of the Brain Based Intelligence Test 2020 team and has worked with Professor J.P. Das. Sir has conducted various interesting assessment tool projects such as video-based projective test of personality in the year 2013, Indian data set of basic emotions in the year 2007. I can assure you that the list of Professor Braj Bhushan's achievement is limitless and infinite. And I feel blessed today to share this platform with Professor so that he can sprinkle a few drops of his knowledge from this immense and astounding well of his knowledge. So there are a few housekeeping announcements that I'll be doing before we start with the session. Professor will speak for about 35 to 40 minutes. After that, we'll have a Q&A session. So remember to post your questions on the platform through which you are connected to us.
Without further ado, I will hand over the screen to Professor Brajbhushan and request him to grace this occasion with his presence. Sir, you may take the lead now. Thank you so much, Monica, for this wonderful introduction. I think Monica was exaggerating many of the things, so you can accept it with a pinch of salt. Today, my task is to narrate something that we all have experienced. So I must frankly tell you that I don't have anything new to share with you. All that you and I know through various channels. It could be mass media, it could be academic journals, it could be discussions, webinars, uh, through events like this. So I'm just trying to zip everything together. And thereafter, I would try to extract some threads that we can weave to construct a meaningful story as to what happened to our mental state, what happened to our mental health, what happened to our what you call as cultural realities, what happened to our lived experiences over this whole last approximately little more than a year. We all know that it was sometime in December 2019 when the news started flashing that there is something called COVID, which is now surfacing in certain geographical regions. And we Indians were alerted that we might come across such kind of a viral attack. Very little was known about the virus. And of course, China was close to this open kind of a sharing. And much of the things started pouring in when the virus started traveling westward. And somewhere around March, all of a sudden, the Prime Minister came to the screen and then shared certain things with us, certain things that he wanted the Indians to follow. And this led to all kinds of things that we have seen. To cut the story short, I just want to bring some of those important experiences that we all had, some of the what you call exceptional kind of experiences that few of the Indians had, and then we will try to look at some statistical data available and then try to connect these dots and see how our mental health got affected in this process. So if you look at the global cases of COVID-19 or corona positive cases, globally, somewhere around 120 million cases were reported, out of which 2.65 million died, unfortunately. But then there was a massive recovery rate. Globally, 67.7 million people recovered. That, of course, is a big number. But then somehow, the kind of information that still hits us harder is the fact that the death rates were very high, somewhere 2.65 million. In the Indian context, we know that 11.4 million got affected, out of which 11 million recovered. And we had very few death cases compared to the global figure. Just 159,000 was the total number. And now we are seeing what is being called in the media as the second wave. A couple of states like Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, some part of Gujarat, Delhi, they are also being affected by this. And when we recollect everything that we saw and things which would now make us little apprehensive what might happen if the second wave also takes a toss. We saw the lockdown. We saw the behavior of human beings during unlockdown process. We also had the brief lockdown in a few cases while things were reopening.
we saw how the medical task force and how the police task force, they were working day and night. And perhaps, especially I will say this for the police force, that they had to do things which they were not trained for. And then we saw certain kind of behavior by the normal common citizens of India, which again was compared to something which India saw in 1947, the mass migration of laborers. I would just tell you that I'm right now continuing in English, but very soon I will switch on to Hindi. I'm told that I should be using the mixed language. तो जिसको कहते हैं कि मजदूरों का पलायन शुरू हो गया. And then we saw the beauty of the society, जो समाज की जो सुंदरता थी वो दिखी हम लोगों को in the form of social service. अचानक से लोगों ने भंडारा खोल दिया, खाना बांटना शुरू किया, चप्पल बांटने शुरू किए, पानी की बोतल बांटने शुरू किए. So this was the the beautiful side of the social reality that we saw. पर दो तीन चीजें बहुत कह लें कि एकांत में कहीं दवा छुपा रह गया किसी कोने में, जो हम लोगों में से बहुतों को नहीं दिखा. जो ऑफकोर्स ट्रेंड मेंटल वर्कफोर्स है उनको जरूर दिखी ये चीजें, लेकिन आम लोगों को वो चीजें दिखी नहीं. जैसे हम लोग हमेशा हर किसी से कहते थे कि आप खाने के पहले हाथ धोइए, बाहर से आइए तो हाथ धोइए, कुछ भी करना हो तो कुछ भी करने के पहले या कुछ चीजों को करने के बाद हाथ धोइए. लेकिन हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते थे कि एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड आपका हाथ धोना नहीं होना चाहिए ना. उसको साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट है ना कहते थे कि ये ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव टाइप की एक बीमारी है, आप रिपीट कर रहे हैं एक ही तरह के बिहेवियर को. पर वो व्यवहार, वो बिहेवियर जो कि कभी ओसीडी माना जाता, सडनली प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर बन गया है ना. डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, घर वाले, कॉमन मैन, पॉलिटिशियन, एवरीबडी स्टार्टेड प्रीचिंग वॉश योर हैंड, है ना. आप साबुन से धोइए, आप सैनिटाइजर यूज कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए. एंड वी वर ऑल्सो एडवाइज टू कन्फाइन आवरसेल्फ इन आइसोलेशन. ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए हम लोग मेंटली डिजाइंड नहीं है ना. बाय नेचर ह्यूमन बीइंग्स ग्रेगरियस एनिमल्स हैं. इवन जो हमारे यहाँ जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, वो भी इतने इंट्रोवर्ट नहीं होते कि उनको एकदम आइसोलेशन में आप छोड़ दीजिए. लेकिन कोरोना के चक्कर में ये कहा गया कि सब लोग एकांत में रहेंगे, है ना. ऐसा हम लोग महाभारत के दिनों में ना एकांतवास में चले गए, इस तरह की चीजें पढ़ते थे. फिर साइकोलॉजी का एक बड़ा 100 साल से पुराना, ज्यादा पुराना इतिहास रहा है उनका, जब उन लोगों ने वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत सारे रिसर्च किए. और इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक अलग ही डायमेंशन ले लिया जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया. जब घर का और दफ्तर का जो वो बैरियर था, जो लाइन ऑफ डिवीजन था, वही खत्म हो गया. और वो चीज जिसके लिए हम सब एप्रीहेंसिव रहते हैं, हर आदमी, वो है कि हमारी राउंड द क्लॉक स्क्रूटिनी चल रही हो. ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऑनलाइन मीटिंग्स होने लगे, ऑनलाइन दफ्तर होने लगा, सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी. तो क्लास में टीचर क्या पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है, वो पूरा घर सुनेगा, पूरा घर देखेगा. और मुझे भी ये पता है कि मुझे केवल मेरा विद्यार्थी ही नहीं, हर कोई देख रहा है, हर कोई सुन रहा है. तो मेरी ऑनलाइन स्क्रूटिनी भी शुरू हो गई. तो आप सोचिए, जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होगी, जिन लोगों को फियर ऑफ आइसोलेशन होगा, जिन लोगों को ओसीडी होगा, ये वो वर्ड्स हैं जो हम लोग कॉमनली सुनते नहीं है. ये तो कह लीजिए कि साइकोलॉजिस्ट के, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के, साइकियाट्रिस्ट के, उनके लिंगोज हैं ये. लेकिन ये सब के सब कॉमन यूसेज में आना शुरू हो गया. अब एक बार चलिए हम लोग इस पूरे व्हील को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस ट्रैक को. हमारे यहाँ अभी आपने देखा कि कोरोना के दो वैक्सीन अभी आ गए इंडिया में. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, पहले उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, और फिर 45 प्लस जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटी है उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी.
अब आप सोचिए कि 60 साल से ऊपर या 45 से ऊपर कह लीजिए, अगर हम दोनों ग्रुप को मिक्स कर दें, तो ये वो ग्रुप है जिसको कि गवर्नमेंट ने कहा कि सबसे पहले आप इनको कोविशील्ड और जो दूसरा वाला वैक्सीन है वो लगाया जाएगा। अब हम अगर वनरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, कोमॉर्बिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और अब मैं जब कोमॉर्बिडिटी की बात कर रहा हूं तो केवल उसी कोमॉर्बिडिटी की बात नहीं कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ने कहा। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा साइकिल लिस्ट दिया हुआ है, डायबिटीज है, उसमें रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, इस तरह के बहुत सारे उसमें कोमॉर्बिड फैक्टर्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक फिगर देखें तो समवेयर अराउंड 44% जो कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई है इंडिया में, वो 30 टू 59 ईयर्स के लोगों के बीच की है ना। 30 साल से 60 साल इसको मान लीजिए, 30 से 60 साल के बीच के लोगों की संख्या ज्यादा है, 44% है। और उनमें जो सबसे कोमॉर्बिड फैक्टर जो स्ट्रॉन्गर पाया गया है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये तीन। और जो चौथा है वो है हाइपरटेंशन, स्ट्रेस। इसका मतलब है कि अगर हम तनाव में थे और कोरोना की वजह से जो तमाम अनिश्चितता हमारी जिंदगी में आई, उसकी वजह से भी जो हमारा एक स्ट्रेस का लेवल बढ़ा, हाइपरटेंशन का लेवल शूट किया, इसने भी एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम किया है। अब आप पूरे कोरोना के समय को अगर आप देखिए तो मुख्यतः तीन चीजें मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक के लिहाज से, उस नजरिए से अगर आप देखिए, फियर सबसे ज्यादा था और कई वजहों से था, है ना। एक धार्मिक स्थल पर एक हुजूम जमा था और वहां से जो लोग दूसरे दूसरे शहरों में चले गए थे उनको ट्रेस कर रहा था। ये माना जा रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोरोना पॉजिटिव केसेस का विस्फोट हुआ है, दिल्ली कहीं वो क्षेत्र था। और बाद में जैसे जैसे डेटा अनफोल्ड होता गया तो वो नंबर अपने आप छोटा होता चला गया। फिर बहुत सारे पॉकेट्स निकल करके आए। फियर था कि मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, फियर था कि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को ना हो जाए, मेरे लव्ड वंस को ना हो जाए, फियर था कि मैं फ्रंटलाइन वर्कर होने की वजह से कहीं मैं इस डिजीज को एक्वायर न कर लूं। और इस वजहों से तमाम तरह के स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस देखने को मिले। आपको याद होगा जब हमारे फ्रंटलाइन जो वर्कर्स थे, स्पेशली जो मेडिकल टास्क फोर्स था, कई जगहों पर उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, कई जगहों पर उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई, पुलिस के ऊपर भी पत्थर फेंके गए। तो अगर मान लीजिए कोई मेरी जांच करने आ रहा था तो मेरे अंदर वो क्या भाव रहे होंगे कि इतने स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस आ गए। तो निश्चित तौर पर जो हमारा फियर और एंजाइटी का जो ये कॉन्ग्लोमेरेट बना होगा, जो एक मिश्रण बना होगा, इस मिश्रण ने बहुत ही अंदर तक हमें डरा दिया होगा और इतना भयानक रूप से उसने डराया होगा हमें अंदर तक कि जो हमारे इमोशनल रिएक्शंस थे वो बड़े ही क्रूड और बड़े ही स्ट्रॉन्ग थे। इसी वजह से वो नर्सिंग स्टाफ, वो पुलिस स्टाफ, वो डॉक्टर्स जो हमारे ही जांच के लिए आ रहे थे और जिसकी वजह से कि मुझे जिंदा रहने में सहूलियत होती, हम उन्हीं को अटैक कर रहे थे। अब आप अगर मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में देखें और खासतौर से अगर थोड़ी देर के लिए आप मेंटल हेल्थ की ब्रॉडर डेफिनेशन पे ना जाएं, रादर मेंटल हेल्थ को आप मेंटल इलनेस के करीब मान करके चलें, तो हमारे यहाँ इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 20% इंडियंस जो हैं, माना जाता है कि ये जो मेंटल इलनेस है उससे सफर करते हैं, कोई ना कोई मेंटल इलनेस इनको होता है, 20% ऑफ इंडियन। और आप 20% समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर होगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। और अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या देखें तो करीब 9,000 आज की तारीख में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो इसका मतलब हो गया कि 1 लाख की जनसंख्या के लिए हमारे पास 0.75%
0.75% साइकियाट्रिस्ट। और होना कितना चाहिए? 1 लाख पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेटेड है कि 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए पर 1 लाख। और जो एक्सेस है, मतलब जितने लोगों के पास उपलब्ध है साइकियाट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये संख्या बहुत कम हो जाती है क्योंकि ज्यादातर लोग अर्बन एरिया में हैं, शहरी क्षेत्रों में हैं। और इस वजह से करीब करीब 70% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का केयर मिल पाता है। और इस वजह से अब हम सोचिए कि अगर आप इस पूरे एज ग्रुप को, क्योंकि हमारा जो कोरोना के काल में जो मरने वालों की संख्या थी, जैसा शुरू में मैंने बताया कि करीब 44% लोग थे जो 30 से 60 साल के बीच के थे। तो अगर हम 30 से 60 साल के बीच के लोगों की जो इपिडेमियोलॉजी है मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की, उसको अगर एक नजरिया आप देखें उस स्टैटिस्टिक्स पे, इसको मैं 3 अलग अलग टुकड़े में तोड़ रहा हूँ, है ना। सो आप 30 से 50 साल के जो लोग हैं और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, इन लोगों में सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है इंडिया में, 30 से 50 और फिर 60 के ऊपर। और दूसरी जो सच्चाई है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि हमारा जो लो इनकम ग्रुप है वो ज्यादा इससे प्रभावित है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से। और जो तीसरी सच्चाई हमारे हिंदुस्तान की है वो ये कि जो अर्बन एरिया है वहां पर इसकी संख्या ज्यादा है। पर इस जो तीसरा पक्ष है कि अर्बन एरिया में ज्यादा है, उसका एक जो राइडर इसमें मैं लगा दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लोग टेस्ट ही नहीं किए गए हैं, इसलिए एग्जैक्ट संख्या उधर अंदाजा है लेकिन एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में एक वर्ड यूज किया जाता है कि लाइफ टाइम प्रेवलेंस, है ना। और लाइफ टाइम प्रेवलेंस भी बहुत ही अजीबोगरीब है अपने यहाँ। पूर्वोत्तर के 2 स्टेट्स असम और मणिपुर, असम में लाइफ टाइम प्रेवलेंस 8.1% और मणिपुर में 19.9%। और बाकी का पूरा हिंदुस्तान असम और मणिपुर के बीच में ही कहीं ना कहीं आता है। मणिपुर के बाद जैसे आप देख लीजिए पंजाब को देख लीजिए, 18% है वहाँ। तो काफी डिफरेंस है। असम और उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए ना, जनसंख्या में एक फर्क है, उनका जो क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल रीजन है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन लाइफ टाइम प्रेवलेंस में फर्क नहीं है। असम 8.1 है, उत्तर प्रदेश 8.7 है। इसका मतलब हो गया कि हम अगर स्टेट के हिसाब से अगर हम कुछ पॉलिसी बनाते हैं तो ये बहुत कारगर नहीं होगी, क्योंकि प्रेवलेंस के हिसाब से हम अगर केटर करेंगे तब बात बनेगी, और स्टेट के हिसाब से करेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से करेंगे तब शायद ना बने। दूसरी एक और चीज है कि हमारे यहाँ जो सुसाइड रेट है उसका भी एक बहुत वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस है। जो लोवेस्ट है हमारे यहाँ, मतलब हम स्टेट वाइज में कह रहा हूँ कि अगर लोवेस्ट आप देखें तो 2.2% है और हाईएस्ट अगर देखिए तो 12.2% है। तो एक ह्यूज रेंज है हमारे यहाँ। और इस वजह से हमारे यहाँ एक ऐसा एक कह लीजिए कि मैच एंड मिक्स बनाना पड़ता है जब भी आप किसी समस्या की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, आप 40 से 50 का जो एज ग्रुप है ना, प्रिसाइजली अगर देखिए तो 40 टू 49 मुझे कहना चाहिए, मोटा मोटी उसको 40-50 का एज ग्रुप समझ लीजिए। 40 से 50 के बीच के जो लोग हैं उनमें साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स में आप देखिए साइकोटिक डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर उनको ज्यादा है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज्यादा है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर ज्यादा है 50 तक की उम्र में। 50 जैसे ही पार करते हैं, 50 से 60 की उम्र में आते आते नेचर बदल जा रहा है ना, सब्सटेंस अब्यूज बढ़ जा रहा है, और मेल फीमेल में भी बहुत डिफरेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को उतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय मुझे 30 से 40 मिनट बोला गया है, तो मैं उसी बीच में इस बात को खत्म करूंगा। अब देखिए, जो ओसीडी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले कि आप कितना फ्रिक्वेंटली आप सफाई पर ध्यान रखते हैं, जो प्रीडोमिनेंट सिम्टम माना जाता था ओसीडी का, हाथ धोना, आज वो रिकमेंडेड बिहेवियर है।
इंडिया में ओसीटी का जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस था वो 0.6% था, बहुत कम है। लेकिन ये 0.6 अगर आप यूरोप और अमेरिका से तुलना करें, जहाँ की प्रेवलेंस रेट बहुत ज्यादा है, वहाँ 2 to 3% का रेट है, उसकी तुलना में हम 1.3% कम है। फिर भी क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ कुल मरीजों की संख्या ज्यादा हो जाती है। और जैसा आपने देखा कि हमारे यहाँ 0.75% ही जो है वो एक्सेस है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे यहाँ ओसीडी पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा थी। मैं अभी महाराष्ट्र में पुणे बेस्ड एक साइकियाट्रिस्ट है, उनसे अभी मैं कहीं मिला था, और मुंबई के 4 अलग अलग शहरों में उनके क्लिनिक चलते हैं। तो मैं उनसे यूं ही पूछा कि कैसा अनुभव रहा उनका इस पूरे पीरियड में, और किस तरह की बीमारियों में उनको एक इजाफा देखने को मिला, क्वांटम लीप देखने को मिला। और जैसा प्रेडिक्टेड है, आप सब अंदाजा लगा सकते हैं, ओसीडी वो प्रॉब्लम थी जिसमें सबसे मेजर जंप देखने को मिला। लेकिन ओसीडी तो एक सिम्टम है, जो कि हम लोगों में ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, अखबारों के माध्यम से ये वर्ड आपने सुना है। आप 2 अन्य चीजों पर ध्यान दीजिए, एक एंजाइटी न्यूरोसिस है और दूसरा हिस्टेरिक रिस्पॉन्सेस है, हिस्टीरिया है। एंजाइटी न्यूरोसिस के केसेस अपने यहाँ जो प्रेवलेंस रेट है इंडिया में 16.5, और हिस्टीरिया का जो प्रेवलेंस है वो 3.3 है। अब आप सोचिए, जब एंजाइटी लोगों की बढ़ रही थी और स्ट्रॉन्गर इमोशनल रिएक्शंस लोग दिखला रहे थे, एक दूसरे पर अटैक करना, फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स पे अटैक करना, पुलिस फोर्स पे अटैक करना, ये सब लॉकडाउन की पीरियड की बातें मैं कर रहा हूँ, है ना। तो आप सोचिए कि ये 6.5 से कितना बड़ा जंप आया होगा। और इन सारे जंप के बीच में अगर आप ये जो फील्ड की बातें थी ना, जो क्लिनिकल जो क्लिनिक्स हैं नेशन वाइड, हम वहां से ये चीजें लेकर आ रहे थे आपके लिए। थोड़ी देर के लिए आप मेरे तरह के प्रोफेशन में आ जाइए, जहाँ आप एकेडमिक्स की दुनिया में आ जाइए, जहाँ चीजें आप रिसर्च ड्रिवन चीजें होती हैं। कई चीजें आप देखेंगे, अगर जो रिसर्च प्योरली रिसर्च ड्रिवन में बात कर रहा हूँ, तो एक मुझे लगता है कि जो एक्चुअल एक समस्या है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इससे कहीं ज्यादा भयावह चीजें शायद देखने को मिले। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च पेपर कुछ समय पहले छपी। उन्होंने 43 लोगों पर ये स्टडी किया, और ये सारे 43 लोग जो हैं वो कोविड-19 पेशेंट्स थे। उन्होंने पाया कि उनके अंदर एक टेम्पररी ब्रेन डिसफंक्शन था। उनके अंदर स्ट्रोक भी देखने को मिला, कुछ लोगों में नर्व डैमेज देखने को मिला, कुछ लोगों में सीरियस ब्रेन इश्यूज देखने को मिले। और इस स्टडी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज से इसको कोरिलेट किया है। आप लोगों में जो लोग इससे वाकिफ होंगे, खासतौर से एपिडेमियोलॉजिकल डेटा जो है उससे, 1918 में 1918 में इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आया, और उस समय इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका नाम की एक बीमारी का आउटब्रेक हुआ, जैसे अभी कोविड 19 का आउटब्रेक हुआ। ये मैं 1920 से 1930 के बीच की बात कर रहा हूँ, 1920 से 1930 के बीच की बात कर रहा हूँ। नाउ इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका का जब आउटब्रेक हुआ, तो जो देखने को मिला वो ये कि लार्ज स्केल लेवल पर ब्रेन डैमेज के केसेस देखने शुरू हो गए। और जो इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका था, उसकी वजह से दिमाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। और जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की स्टडी अभी पब्लिश हुई, वो भी दिखलाता है कि जो कोविड-19 जिसको कि हम मानकर चल रहे थे कि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ना, ये हमारे लंग्स को प्रभावित कर रहा है, वो स्टडी बता रही है कि बहुत सारे जो ब्रेन डैमेज लिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन पेशेंट्स में देखने को मिले जो इस स्टडी के पार्टिसिपेंट्स थे, जो 43 लोगों पर थी जिन्होंने स्टडी की थी। और ये रिसर्च ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में बहुत तरह के कॉग्निटिव डेफिसिट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें खास तौर से जो हमारी एबिलिटी टू वर्क है, काम करने की जो हमारी क्षमता है,
और वो एक्टिविटीज जो हम डे टू डे लिविंग के लिए करते हैं वो चीजें इससे प्रभावित होंगी। तो इसका मतलब यही हो गया कि एक तो लाइफ का ये अजीबोगरीब सी एक चीज जो कि हम एकांतवास में रहने के आदी नहीं है, आइसोलेशन में रहना पड़ गया, लॉकडाउन में रहना पड़ गया, एक कन्फाइंड सेटअप में रहते हुए सर्टेन काइंड ऑफ अनसीन ब्रेन रिलेटेड इश्यूज भी अब आ रहे हैं जो आने वाले समय में दिखेंगे, ग्लैरिंगली अभी सभी में नहीं दिख रहा है। दूसरी एक चीज और मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो सुसाइड के केसेस थे उनमें इजाफा हुआ, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे उसमें इजाफा हुआ, और जो नंबर ऑफ सेक्स वायलेंस है उसमें भी इजाफा हुआ। ये तीन चीजों में जबरदस्त उछाल आया है, और ये डेटा आपको अभी टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगले साल की रिपोर्ट आएगी तब उसमें हम लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजों को देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग अलग अलग एजेंसीज में काम करते हैं जहाँ कुछ हैंड्स ऑन डेटा वीकली या डेली बेसिस पर जमा हो रहा है, आप उन लोगों से बात करें या अगर आप में से जिनके पास एक्सेस हो आप देखें, तो ये तीन चीजें बहुत क्लियर दिख रही हैं। जो सुसाइड रेट में एक खास चीज जो देखने को मिल रही है कि अभी तक जो प्राइमरी रीजंस माने जाते थे, आदमी कर्ज में डूबा हुआ है, वैवाहिक समस्याएं हैं, दहेज से रिलेटेड समस्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, विवाहेतर संबंध हैं, तलाक है, परीक्षा में फेल हो जाना है, ये सारी चीजें अब तक के कारण हुआ करते थे, है ना। अकेलापन कारण हुआ करता था, है ना। एक अनजान सा भय भी एक वजह हुआ करता था, आर्थिक तंगी भी एक वजह हुआ करती थी, है ना। लेकिन अब ये देखने को मिला कि आर्थिक तंगी, एक्चुअल आर्थिक तंगी आने के पहले ही व्यक्ति वो सुसाइड की तरफ बढ़ जा रहा है। इनफैक्ट ये साइकोलॉजी की स्टडी नहीं है, पंजाब की स्टडी है और नेशनल लॉ स्कूल की स्टडी है ये सुसाइड पर, है ना, कि सुसाइड के किस तरह के केसेस और किस वजहों से लोग सुसाइड कर रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा कि जो प्रमुख कारण अब तक माने जाते थे उसमें एक और कारण ऐड हो गया। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो ये कि सुसाइड और सब्सटेंस अब्यूज में एक कनेक्शन भी देखने को मिला। यह भी एक यूनिक चीज है। आप याद कीजिए जब अनलॉकडाउन होना शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो चीज खुली और उस पर बहुत सारे मीम्स भी बन के सोशल मीडिया में घूम रहे थे वो था कि शराब की दुकानों से बैन हटा और वो दुकानें खुलने लगी और गवर्नमेंट को करोड़ों का रेवेन्यू मिला, है ना। और इसको बहुत लेकर के सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे। सुसाइड और सब्सटेंस अब्यूज का जो लिंक कोरोना पीरियड में देखने को मिला, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक, वो इसके पहले के जो एसोसिएशन वाली स्टडी हुआ करते थे, कोरिलेशनल स्टडी थी, उसमें इतना हाई नहीं हुआ करता था। तो यह भी एक अमेजिंग फैक्ट था। और पिछले साल 2020 में अकेलापन पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। आप लोगों में से कई लोगों ने शायद इसको पढ़ा हो या हो सकता है पार्टिसिपेट भी किया हो, मुझे नहीं पता। ये अब तक की सबसे बड़ी स्टडी बताई जाती है। 46,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। ये बीबीसी लोनलीनेस एक्सपेरिमेंट था। बीबीसी रेडियो 4 और बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज ने इसको चलाया और इसमें 16 साल से 99 साल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें 237 देशों के लोग जो थे उन्होंने शिरकत किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो मजेदार चीज मैं कहूंगा जो निकल कर सामने आई वो ये कि जो हमारी उम्र है इसका हमारे एक अकेलापन से एक संबंध है। आमतौर पर जो साइकोलॉजी के रिसर्च बड़ा ही इंडोर्स किया करते थे कि जो लोग घर में बड़े बूढ़े हैं उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। बीबीसी लोनलीनेस स्टडी 2020 बताती है कि ये सच नहीं है। अब ये स्टडी 46,000 लोगों की स्टडी ये बताती है कि जो घर में सबसे छोटे उम्र के सदस्य होते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में वो सबसे ज्यादा अकेला महसूस किए अपने आप को।
उनकी तुलना में जो मिडिल एज के लोग हैं उनके अंदर और जो बूढ़े हैं उनके अंदर सबसे कम अकेलापन का भाव आया। मैं कह रहा था कि सुसाइड का जो कनेक्शन है और सब्सटेंस अब्यूज का पैटर्न भी आप देखिए लॉकडाउन पीरियड में वो बदल गया। दूसरा आप ये देखिए कि जो मेल्स हैं, जो मर्द हैं, वो ज्यादा लोनली रिपोर्ट किया उन लोगों ने अपने आप को विमेन की तुलना में। विमेन ओवरऑल लोनलीनेस के लिए बहुत प्रोन मानी जाती है कि ज्यादा ससेप्टेबल हैं, डिप्रेशन प्रोन भी होती हैं महिलाएं ज्यादा। लेकिन एक अच्छी चीज उनके साथ ये है कि वो डिप्रेशन प्रोन है, लेकिन वो बाउंस बैक भी वही सबसे ज्यादा करती है। मतलब उनको जल्दी होता है डिप्रेशन, पर वो जल्दी निकल भी जाती है। मेल्स में डिप्रेशन होता है पर उनके निकलने का रेट फास्टर नहीं है। तो रिकवरी जो है ना, स्केप या रिकवरी जो वर्ड आप यूज करना चाहिए, वो फास्टर है विमेन में। लेकिन जो ये लोनलीनेस स्टडी हुई 2020 की बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की, तो पता चला कि जो मेल्स हैं वो ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और अब आप सोचिए कि वो मेल हो और कम उम्र का हो, वो सबसे बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि आप किस तरह के सोसाइटी में रहते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके लिए लोनलीनेस का कारण बन सकता है। और ऑफ कोर्स इसमें यह है कि आप कलेक्टिविस्ट बैकग्राउंड से हैं या इंडिविजुअलिस्टिक बैकग्राउंड से हैं। बट मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कलेक्टिविस्ट और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि हम हिंदुस्तानी कहने को कलेक्टिविस्ट हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आप असम के हो सकते हैं, आप राजस्थान के हो सकते हैं, आप मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, आप तमिलनाडु के हो सकते हैं, लेकिन नौकरी के सिलसिले में आप हिंदुस्तान के किसी और कोने में हो सकते हैं। आप अपने प्रोफेसर, परिवार से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज हमारे यहाँ बढ़ते चले गए। अब आप सोचिए कि अर्बन क्षेत्र में Professor, जो लोग आ गए। are you able to hear me, Professor? या आई कैन हियर यू। I'm so sorry to interrupt in between, sir. Actually, there has been a lot of questions that has been coming. ओके। And as the session is towards its end, we actually wanted to ask you certain questions that we have got from our audience members. I'm sure you have a lot of amount to share with us on the current topic. And the beautiful part of this session is the amount of statistics that you have shared in such a limited amount of time. And the knowledge that you have shared is so relatable on such a great level that uh, it actually has given us this curiosity which obviously gave rise to certain questions that we would like to ask you, and we would actually thank you a lot to you if you can answer certain of the queries. It's obviously not possible to take all the queries, but we will try to ask some questions and get some beautiful insights from you. Is that all right, Professor? या यू कैन बिगिन विद द क्वेश्चंस। Okay, thank you, Professor. Thank you so much. So the first question that I have received is, various families have members that have mental illness such as anxiety, OCD, depression, ADHD, even before the pandemic. And the pandemic may have gotten the situation worse. What are the few suggestions or strategies they can adapt for better adjustment? I would request if you can tell me whether my answer should be in English or Hindi for specific questions. That would help me. So it's on you. Whatever you are comfortable with. वैसे Hindi I'm will be better, I guess, I'm because I'm comfortable with both. So it depends on the audience, no, which person has asked the question and whether the person would like to listen to me in English or in Hindi. So accordingly, I can switch between the two languages. sir, I guess Hindi will be the better medium to Okay. communicate because there is a Okay. larger population that will be looking Okay. up for the session. देखिए जो क्वेश्चन है कि इसमें मैं कह लूं कि इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ अ बैग दैट यू आर आस्किंग, नो। क्योंकि इसमें हर एक समस्या अपने आप में एक यूनिक समस्या है ना। एडीएचडी एक अलग तरह की समस्या है, डिप्रेशन एक अलग तरह की समस्या है, ओसीडी एक अलग तरह की समस्या है। तो इसीलिए जब आप कहें कि एक परिवार में अगर ये भी हो, तो आई डाउट कि कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें इकट्ठा ये सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपने क्योंकि पूछा है, देखिए
जो पैरामाउंट है हम सबों के लिए वो ये कि अगर आपको एक समस्या दिख रही है तो जो आपके नियरेस्ट मेंटल हेल्थ केयर के जो भी दे सकते हैं, इट कुड बी अ साइकियाट्रिस्ट, इट कुड बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इट कुड बी इवन योर कंसल्टेंट फिजिशियन अगर कोई साइकियाट्रिस्ट का एक्सेस नहीं है आपके पास. टॉक टू देम. They are the best judge to tell you whether your case requires a clinical investigation or not. हो सकता है कि अभी अचानक से मेरी समस्या जो है ना वो मुझे बड़ी लगने लगी हो, क्योंकि मैं कन्फाइंड हो गया, लिमिटेड मूवमेंट होने लगा, जिंदगी की दूसरी समस्याएं बढ़ने लगी, तो मुझे मेरी अपनी समस्या अब बहुत बड़ी लग रही है, यह एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो व्हाट आई एम सेइंग कि आप ये मान के न चलें कि ये समस्या है तो डेफिनेटली मुझे डिप्रेशन है. हर आइसोलेशन का भाव और हर बार मन का उदास होना डिप्रेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है. सो जिसको ना साइकोलॉजी वाले एक वर्ड यूज करते हैं कि ब्लू स्टेट ऑफ माइंड है. हर ब्लू स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रेस नहीं है, हर ब्लू स्टेट ऑफ माइंड डिप्रेशन नहीं है. तो एक एक्सपर्ट से मिलिए और आपको बहुत आसानी से ये पता चल जाएगा कि जो जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं क्या उसमें क्लिनिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है या नहीं है. एक वार्निंग मैं केवल देना चाहूंगा कि आप इंटरनेट पे पढ़ करके खुद से सेल्फ डायग्नोसिस न करें, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी होती है. हम में से ज्यादातर लोग जो है ना वो सेल्फ डायग्नोसिस में ओवर स्ट्रेच कर देते हैं. ओवर स्ट्रेच मतलब कि हम लोग में से बहुत लोग सजेस्टेबल हैं और वो मान लेते हैं कि अरे मुझे तो यही है, तो आपको वो समस्या हो ना हो आप मान लेते हैं कि मुझे समस्या है. और हम लोगों में से कुछ लोग तो ज्यादा ही बड़े काउंसलर होते हैं, तो हर दूसरा व्यक्ति उनको मरीज नजर आता है. तो इस दोनों तरह की चीजों से बचना चाहिए. तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं अपनी समस्या को. और यूजुअली इसमें से ज्यादातर समस्या जो है ना ये फर्स्ट 30 डेज के अंदर अपने आप खत्म भी हो जाती है. पहले 30 दिन के अंदर जो समस्याएं खत्म नहीं होती हैं उन्हीं के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेने की जरूरत पड़ती है. तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन लें और एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आपको बता देगा कि क्लिनिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है या. So now I would like to hand over the screen to our co-host Lalita, and she will be taking the further questionnaire session. Good afternoon, everyone. I am Lalita Badhi. I will be the co-host for the today's session. First of all, I would like to thanks to Professor Rajabhushan sir and especially thanks to Arvind sir for giving me this opportunity to hear I am presenting Cyclops. And thank you all audience to joining with us. My so right now I am taking some audience questions. So in India, how many people get benefited through counseling during COVID situations? Oh, there is no such statistics available. Okay, we don't have any data, nationwide data, which says how many people went for seeking counseling assistance, how many people went to psychiatrist, how many people got benefited. So there is no such data. See, we aren't like the Western NHS kind of a system where everything is logged in. You log in, no? You have the NHS card, and therefore पता चलता है कि ये व्यक्ति है, इस कार्ड नंबर वाले ने फलाने फिजिशियन को या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच किया है. अर्बन एरिया में बाय द वे दिस इज अगेन वर्ड ऑफ माउथ है ना, जो हमारे जो परिचित हैं जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं क्लिनिक्स में, उनके माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली मैं आपको बता सकता हूँ कि करीब 6 से 7 गुना संख्या में वृद्धि हो गई है ना. 6 to 7 टाइम्स का जंप है in the clinic. But this is only about the urban India. And urban area में India में भी it's mostly A grade cities and some B grade cities, not entire urban India. So ऐसा कोई statistics है ही नहीं जो हम लोगों को ये बता पाए कि कितने लोगों को कितने लोगों ने अप्रोच किया और कितने लोगों को फायदा मिला. Yes. So I have another question. Sir, मैं एक एनजीओ पे काम करती थी. वहीं पे मैं सुसाइडल प्रिवेंशन एक
एक प्रोजेक्ट पे काम करती थी, उसमें से मैं बहुत सारे कॉल आते थे सुसाइड प्रिवेंशन का ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशंस में। तो सर वहीं पे सब लोग जैसे कि इमोशनल सपोर्ट से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में ज्यादा बात करते थे। उसी सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं सर? कैन यू एक्सप्लेन अस? See, this is a generic question, I would say. So this has not to do only with pandemic. This has to do more with suicide prevention, and especially suicide prevention helplines जो चलती हैं. Suicide prevention में देखिए, you have a limitation when you run an online suicide helpline service. Your primary goal cannot be to help the patient overcome the problem, है ना? क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस एक मेजर चंक होता है लोगों की प्रॉब्लम का. आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट आपका जो रोल है वो ये कि उस फेज में जबकि ये इम्पल्स एक्टिवेट हो रहा हो, जब वो सुसाइड कमिट कर ले, उस इम्पल्स को केवल प्रिवेंट करना है. सो योर रोल एंड्स बाय ओनली होल्डिंग द पर्सन बैक टू get the impulse activated. Long term solution problem solve करने का जो है financial help, that is something that counseling helpline services cannot provide. Okay sir, thank you sir. I have another question sir. सर ड्यूरिंग सेशन आपने जैसे बोला कि ओसीडी एंड मतलब ऑब्सेसिव हैंड वॉशिंग एंड राइट नाउ ड्यूरिंग पैंडेमिक बिकॉज ऑफ योर लोगों ने रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग का जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो अभी प्रिस्क्राइब हो गया है, जैसे कि प्रिस्क्राइब हो गया, तो हम जैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ऑब्सेसिव हैंड वॉशिंग एंड नॉर्मल हैंड वॉशिंग में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एज ए काउंसलर, as a clinical psychologist? How can you distinguish between obsessive hand washing and normal hand washing? So can you explain us this question? I must say, Lalita, this is a very good question and I don't have an answer to this. The reason, where to draw the line, है ना? Clinical examination में हमेशा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, कि फ्रीक्वेंसी अगर इस लिमिट के बियॉन्ड हो then it is clinically significant, below this threshold it's not clinically significant. तो यूजुअली हम लोग क्या समझते हैं कि अगर आप खेल करके बाहर से आए, आप टॉयलेट गए, खाना खाने के पहले आपने कोई गंदी चीज छुई हो तब आप हाथ धोएंगे. So that would amount to some say 6-7 episodes of hand washing in a day at max, 4 times before meal or snacks, है ना, and 2-3 times additional आप जोड़ लीजिए. So at max one will draw a line कि इतना होना चाहिए. जो रूटीन में अब आ गई चीजें वो ये कि एवरी टाइम यू टच अ सरफेस यू वॉश योर हैंड आइदर विथ सोप और विथ सैनिटाइजर. अब इसमें Thank you, कितने, sir. उसमें कितने पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज नॉट येट नोन. Sir, you एंड mean to say कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम फॉलो करना चाहिए? तो मतलब कि उसमें से हम क्या जैसे कि नॉर्मल हैंड वॉशिंग एंड जो हमारे ऑब्सेसिव हैंड वॉशिंग है, हम थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मेजर करना चाहिए, राइट? एम आई राइट सर? आई एम सेइंग कि एज ऑफ नाउ यू कैन ओनली गो बाय द फैक्ट कि किस एक्टिविटी के प्री या पोस्ट हैंड वॉशिंग का एपिसोड हुआ, है ना. सो इफ आई एम व्हाट यू कॉल सेंसिटाइज्ड ह्यूमन बीइंग एंड यू टेल मी कि आप कोई भी फॉरेन सरफेस छुइएगा तो हाथ धोना पड़ेगा, तो मैंने टेबल छुआ तो मैंने सैनिटाइज किया या हाथ धोया, दरवाजे का डोर लॉक छुआ तो हाथ धोया, यू कैन नॉट कंसिडर मी एज ऑब्सेसिव बिकॉज दिस इज नाउ अ रिकमेंडेड बिहेवियर, राइट. लेकिन मैं कुछ भी नहीं छूऊं और तब भी मैं लगूं बार बार अगर सैनिटाइजर यूज करने, then it is an indicator that I am not showing a normal kind of sensitized reaction. As of now, this is what we can say. I'm sure कि in the coming years, not months, coming years, we will have the data कि OCD cases में कितना परसेंट का लीप आया और नॉर्मल में कितना परसेंट का लीप आया, and then I'm sure the threshold will be clinically defined. So, sir, I would like to ask the next question. So, what are some of the common effects of COVID-19 pandemic on mental health? You have very beautifully already mentioned some of the effects,
But if there can be like certain highlights that you would like to give us on this question, what will be that? I think not more than three or four. One is the fear. We must accept as human beings that we are fearful creatures. And fear of unknown disturbs us the most. So the moment you make something unknown to me, I become highly scared. COVID has created that. Okay, it did tell us right now, of course, situation is improving, but COVID did tell us that life is uncertain. My own survival is at stake. The survival of my loved ones are at stake. Okay, for many of us, our livelihood was at stake. So, whole lot of things that would have helped me survive in this world was at stake. So, fear is something that reached the epitome, I would say, and that too fear of unknown. Unknown because of multiple reasons. Two, the moment fear became mixed with a sense of loneliness, situation became far more difficult for us. Okay, somebody has to fly from one place to the other, or has to travel from one place to the other, and then you say 14 days quarantine. Okay, even if you are with your family, you are packed in a room. Now imagine I am packed in a room day and night thinking that I might turn positive. What will happen to my wife? What will happen to my parents? What will happen to my kids? So you are adding to my fear. So loneliness was adding to this fear. And then behavior which was what you call proscribed, which were not supposed to be repeated. Okay, like washing of hand too many times or using chemicals to sanitize the hand. Suddenly that became a preferred behavior. So proscribed became prescribed. Okay, so I started distrusting people. Okay, now even today, when the vaccination has begun, there is lot many resistance in the society. Not many people are accepting the vaccine. Okay, so my fear of the unknown has made me reach a point where I am still testing that let the first set of people get the vaccine. If they survive, then I will go ahead. I'm not thinking that because of the lack of vaccine, I might get affected. I become vulnerable to it. So I think this is for a normal people, the non-clinical population, fear mixed with the loneliness is the biggest thing that has come up. For the clinical population, I think it is OCD, and again it is the clinical anxiety. And those who had issues with substance abuse, this three I think has gone to the toss. So, sir, if I kind of conclude this answer that you just mentioned, gave. So, the first you said was fear of unknown is the one effect of pandemic that has very much highlighted in the population. Second was loneliness. Third is prescribed behavior, the behavior which was earlier not prescribed, but now it has become a routine part of our life. For example, hand washing. And then the third was testing the vaccine on other people, like getting the vaccine tested on other people first, and then maybe we can take it. But we don't realize that while we are doing this, we are actually making ourselves more vulnerable to the virus. Am I getting it right, sir? Yeah, yeah, yeah. Okay, so I have one more question. So it was very difficult for people to adapt to the complete lockdown, and the aftermath of lockdown is very much visible in the current economic situation also. So this won't be a economy wala question. So my personal question here is, so lockdown may, as we were like in complete isolation, like with our family members, so our bonds got affected a lot with our family members. So how to better adapt, like as the lockdown is lifted now, what are certain strategies that an individual can use so as to better adapt to the current situation, so that we can deal with the fear and the loneliness? So that's my question. I think there are two things. No, one where I will use a psychological term, and one that all of us know: invest in relationship.
take care of yourself, take care of your loved ones. So invest in relationship. आपके पास दोस्त होंगे, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, मिल नहीं सकते हैं तो फोन पे बातें कीजिए। अभी तो पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया ऑनलाइन हो गई इस पूरे 1 साल में। खुद को महसूस कराइए कि आप महत्वपूर्ण हैं और दूसरे को एहसास दिलाइए कि वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस किसी के साथ जैसा भी आपका रिश्ता है वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वंस यू स्टार्ट inculcating this feeling in yourself and other person, this will help you overcome whatever deficit you are experiencing. It could be financial deficit, it could be emotional deficit, whatever deficit it is. Second thing, empathy has been found in behavioral research. Psychology shows that empathy is a much stronger tool to deal with adversities. So be empathetic, है ना? दया का भाव रखिए, खुद पर भी दया करुणा का भाव रखिए और दूसरों के प्रति भी दया का भाव रखिए। और जो दया करुणा का भाव आपके अंदर है उसको आप प्रदर्शित कीजिए, दिखलाइए। मतलब आपका दया आपके मन में ही दब के न रह जाए, एक कविता बन के न रह जाए, एक पोएट्री बन के न रह जाए, एक फेसबुक ट्विटर पोस्ट बन के न रह जाए। समाज में जिस व्यक्ति या जिस समुदाय के लिए आपके मन में दया का भाव जगा, उसके प्रति आप दया को दिखलाइए, प्रदर्शित करिए। एंड दिस विल सी, अगर मैं किसी के लिए दया दिखलाता हूँ तो कोई मेरे लिए भी दया दिखलाएगा, एंड दैट विल मेक मी फील दैट आई लव यू एंड यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर लव एंड कॉन्फिडेंस। तो ये म्यूचुअल लव जो होगा ना समाज में एक दूसरे के प्रति, एक प्रेम का भाव होगा, एक केयर का भाव होगा, एक श्रद्धा का भाव होगा, collectively this will help the society grow. Thank you so much, sir. So I would like to thank you on the behalf of Cyclops Magazine and our audience members for taking a time out of your busy schedule and gracing us with your presence and knowledge in this session. This has been a fantastic journey, and it was such a privilege to hear you. So I would like to conclude the session a little, what all we were able to grasp in this session. So we started off with common exceptional experiences that arose in pandemic, such as fear and loneliness that people started to feel because of the lockdown and the isolation. And then we talked about the statistics which were related to the suicide rates, the OCD, mental illness, and other physical health issues. And then we also talked about the recovery rate of COVID-19 and how this unprecedented situation led to certain situations which were there in the past also, such as the mass migration of laborers, which happened earlier in 1947, and then it was again witnessed in 2020 at a very large level, which also which also gave rise to the social service in the community, where people opened their hearts and they kind of donated things to people who were migrating and who were the less well-to-do of. So then we talked about the behavioral part, the behavioral impact of pandemic COVID-19. So the one behavior that was highlighted here is the overdoing of hand wash. Basically, first first before the pandemic, hand wash behavior which was, if done in amount which exceeds a certain amount of number, was related to OCD, that is obsessive compulsive disorder, specifically cleanliness aspect may. But then all of a sudden it became a prescribed behavior. Everywhere there are advertisements, there are posters that say wash your hands, wash your groceries, wash everything, and sanitize everything. And then we talked about the Ekantwas concept that was there in Mahabharat, and the confinement that we faced in the year 2020, where we isolated ourselves so as to stop the spread of virus. And then we talked about the work and family conflict that arose due to COVID-19, where people were working in the boundaries of their home and had to deal with the family matters and work at the same time. And then Sir gave a very beautiful concept of round the clock scrutiny, which was basically about how we were vigilant, how we were being vigilated all the time. When we were in school, like in before pandemic, so we were not witnessed by our parents and our friends, but our siblings,
But now at home, when we are taking online classes, our parents are there, our siblings are there, we kind of get conscious about it. Round the clock scrutiny increased. And then we talked about the vaccines development, how the government gave the vaccine, how the government is planning to give vaccine to different age groups, 60 above, 45 plus with comorbidity will be given the vaccine first, and then the other people. Then we talked about the comorbidity part also, that how people in the age group of 30 to 60 lost the died due to the COVID-19 pandemic. There was a there was the statistic of 44%. So, sir gave various other statistics regarding the clinical part and the mental health part for individuals to understand. And then at the end, we talked about the BBC loneliness experiment also. And then we talked about the increase in domestic violence, sex violence, and suicide rates due to COVID-19 pandemic. And then we had certain questions, and that was about it. And now I would like to thank you, Professor Brajbhushan, and everybody for marking their presence in this event. And that is it for the day. We will try to bring more of such informative session in this International Mental Health Festival 2021. And I wish to see you all in our upcoming session. Wish you all a great week ahead. Thank you, everyone. Thank you.